انسان اگر کر لے تو وہی اس کی زندگی میں کافی ہوگی اور وہی اس کا کچھ دار نہیں یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے سے جامع کلمات دے کر کے بھیجا ہے کہ وہ بات تو ایک بیان کروں گا لیکن ان کے مطلب بہت زیادہ ہوں گے۔ تو چھوٹی سی حدیث جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ارشاد فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ الصحابی تمدون بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کہ میرے صحابہ کو ستاروں کی معلوم ہے ایک کبھی اگر دامن تھام لو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ ایک ہی صحابی کی اگر ہم نے بات کو پکڑ لی ایک صحابی کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کر کے اپنے سامنے رکھ لیا تو انشاءاللہ اسی سے ہم نجات پا جائیں گے۔ یہ حدیثیں جو ہم روزانہ سنتے ہیں سناتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا سننے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہماری توجہ خود نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ بھی حالات کے اندر سدھار پیدا نہیں کریں گے۔ یہ ضروری چیز ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا حضرات کو کہ دیکھو جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگا کرتی تھی تو اس میں صحابہ بھی تشریف رکھتے تھے، آ کر کے بیٹھتے تھے، اور منافقین بھی آ کر کے بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں سے بھی زیادہ سخی تھے، بات بیان کیا کرتے تھے، وہ آخرت کی یا دنیا کی یا معاملات کی جو بھی وہ سب کے لیے بیان ہوتی تھی۔ ان کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا نعوذ باللہ کہ صحابہ کی خاص مجلس میں اور باتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ جب منافقین ہوتے تو ان کے سامنے کچھ اور باتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اچھائی کی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ اب یہ انسان کی اپنی تقدیر اور اس کی کوشش ہوا کرتی ہے دنیا کے اندر وہ کیا لیتا ہے کیا نہیں لیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ بھی اس وقت تک کسی کے حالات کو نہیں بدلتے جب تک کہ انسان خود اپنے حالات کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے قانون ہے، نظام قدرت ہے، یوں ہی چلتا آ رہا ہے، چلتا رہے گا۔ کوئی بھی چیز ہو اس کے لینے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہمیں انت تک کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ محنت اور کوششوں کے بعد وہ چیز مل ہی جائے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم بس آخرت کے کاموں میں لگے رہیں، جو احکام شریعت ہیں ان کے اوپر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ نجات پا ہی جائیں گے۔ تو اس واسطے جو دین کی مجلسیں لگتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، احادیث بیان ہوتی ہیں، یہ نیت لے کر کے ہم لوگوں کو بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو سنیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کی پوری کوشش کریں گے۔ جب یہ حالات اور یہ نیت ہماری ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کریں گے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ کے قبضے قدرت میں تو ساری چیزیں ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، دلوں کو وہی پھیر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اور پھر اندازہ لگاؤ جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو عرب ہی نہیں تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، جہاں اللہ کی خدائی کا انکار نہ کیا جاتا ہو، جہاں لوگوں کو شریعت کے بارے میں کچھ نہ پتہ ہو۔ اور عرب کو چونکہ اللہ نے مخصوص جگہ بنایا تھا وہاں نبیوں کے بھیجنے کا انتخاب کیا، تو جب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں تو وہ جس طریقے سے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، پلٹ سکتا ہے، تو پھر انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں۔ جب اللہ نے عہد الستو کے اندر یعنی دنیا کے بننے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہونے والے تھے، آدم علیہ السلام ہو یا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جتنے بھی انسان بننے والے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ان سب کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں، کیڑوں کی شکل میں وہاں اکٹھا کیا تھا اور سب کے سامنے یہ کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت میں سب نے، چاہے وہ دنیا کے اندر آ کر یہودی بن گیا، چاہے وہ غیر مسلم بن گیا، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد الستو کو یاد دلانے کے واسطے اللہ نے اپنے نظام قدرت کے تحت انبیاء کرام علیہم السلام کے بھیجنے کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جب میں ابھی کہا میں نے کہ جب اللہ کی
दो उंगलियों के दरमियान लोगों के दिल हैं, तो जिस तरीके से चाहता है तो तसर्रुफ करता है और जिस तरीके से चाहता है उन दिलों को फेरता है। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी कि अंबिया ने आकर के यहाँ तबलीग की? तो इसका जवाब बुजुर्गान दीन ये देते हैं कि असल में अल्लाह का निज़ाम कुदरत ही चलता हुआ आ रहा है। दुनिया के अंदर आ करके सबको मेहनतें और कोशिशें करनी पड़ेंगी, चाहे वो दुनियावी काम हो चाहे उखरवी काम हो, उसके लिए कोशिशों का होना ज़रूरी है। अल्लाह वैसे ये भी कर सकते हैं, बाद दफ़े ऐसा हो भी जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने सुना कि इस्लाम के लाने से पहले, मज़हब इस्लाम में दाखिल होने से पहले हज़रत की क्या हालत थी। यहाँ तक कि हज़रत का गुस्सा था और दुश्मनी थी इस्लाम से कि जब ये मशवरा हुआ दारुन नदवा, एक जगह थी उनकी, वहाँ कमेटी लगती थी, मजलिस लगती थी, वहाँ दीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होती थी वही उनके मशवरे होते थे दारुन नदवा के अंदर। वहाँ ये तय हुआ कि जब तक कि नौज़ुबिल्लाह हम इस मोहम्मद को कत्ल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे जो आबा अजदाद का दीन है वो पस्ती के अंदर ही जाएगा, उसे वो जलील ही होता रहेगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सबसे पहले कहा कि मैं इस काम को करूँगा। जब आपने कहा कि मैं इस काम को करूँगा तो वहाँ मजलिस के अंदर जितने भी कुफ़ार थे सब के सब ने वाह वाह और शाबाश दी और ये कहा कि वाक़तन आपसे उम्मीद यही थी कि आप इस काम को कर सकते हैं। चले जा रहे थे, लेकिन वो सारा किस्सा हुआ, फिर अपने घर गए कि कोई साहबी रास्ते में मिल गए, तो उन्होंने कहा कहाँ का इरादा है, बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इस तरीके से बात है। तो उन साहबी ने कहा कि पहले अपने घर की खबर लीजिए, क्या हाल है तुम्हारे घर का, तुम्हारा बहन और बहनों मुसलमान हो चुकी, और गुस्सा आ गया, वहाँ जाकर लड़ने लगे। तो फिर जब मारा बहन के और बहन के मुंह से खून निकला तो एकदम से उनका गुस्सा ठंडा हो गया और फिर ये कहा अच्छा दिखलाओ क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी दिखलाओ। तो उनकी बहन ने कहा कि उमर तुम नापाक हो और जब तक कि तुम गुस्ल नहीं कर लोगे उस वक्त तक हम इस कलाम पाक को जो अल्लाह की आयतें हमारे पास हैं तुम्हारा हाथ तक नहीं लगाने देंगे। गुस्ल किया, हाथ में ली, पढ़ना जानते थे और पढ़ा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ये आयतें पढ़ी तो आँखों से आंसू जारी हो गए और ये कहा कि चलो अल्लाह के नबी के पास ले करके चलो। चुनाचे वहाँ गए, दरवाज़ा बंद था, दार अरकम में थे आप, अरकम एक सहाबी का नाम है, उनके घर में थे आप। लोगों ने देखा कि उमर है और तलवार हाथ में है। तो अल्लाह के नबी से आकर के जब बतलाया तो अल्लाह के नबी ये फरमान है कि आओ, अगर आ रहे हैं सीधी तरह तो ठीक है वरना हम उनसे कम नहीं है। जब अंदर तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर को अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर क्या अभी संभलने का वक्त नहीं आया? हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह गुलामी में आया हूँ, कबूल कर लो। तो सबने वहाँ नारा लगाया। तो फिर एक सहाबी आए और ये कहा वहीं कि हज़रत उमर मुबारक हो, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में और अबू जहल के बारे में कल ये दुआ की थी कि या अल्लाह इन दोनों में से एक को इस्लाम के अंदर दाखिल करके इस्लाम को क़ुव्वत और शौकत अता फरमा, और तुम्हारे बारे में कबूल हो गई। तो अल्लाह की वो मुराद थे तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाद दफ़े ऐसा हो जाता है कि अल्लाह खुद किसी को खींच लेते हैं। तरीका वही है कि यहाँ आकर दुनिया के अंदर अमल करना पड़ेगा। बतलाना मकसद ये है कि जब तक कि हम खुद अमल की कोशिश नहीं करेंगे और तवज्जो नहीं करेंगे, अल्लाह भी हमारे हालात के अंदर सुधार पैदा नहीं करेंगे। अब मैंने आप हज़रात के सामने एक हदीस पढ़ी थी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। इस हदीस का तर्जमा यह है, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक का अपने छोटे के ऊपर निगहबान है, और अगर उसके मातहत जो उसके दस्त निगरे हैं, जो उसके मातहत हैं, जो उसके छोटे हैं, अगर वो बिगड़ते हैं और बड़े ने उनके हालात के सुधारने के अंदर कोशिश नहीं की तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुमसे इस बारे में सवाल होगा। मसलन बाप है, अगर औलाद की तरबियत सही शरीयत के मुताबिक नहीं करता और बाप की तरबियत न करने की वजह से औलाद जहन्नम के गड्ढे के अंदर जा रही है, गलत कामों के ऊपर पड़ रही है, बुरे काम कर रही है और फिर बगैर तौबा के इंतकाल हो गया, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि औलाद की तरबियत शरीयत के मुताबिक नहीं की तो तुमसे भी इस बारे में सवाल किया जाएगा। और जितने गुनाह औलाद करेगी उन गुनाहों का अजाब और इक़ाब औलाद को तो होगा ही। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं चूँकि बाप ने शरीयत के मुताबिक तरबियत नहीं की, इस वास्ते बाप के नाम अमल में भी उनका अजाब और उनका इक़ाब लिखा जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखें। तो इस वास्ते जब अल्लाह ने कुछ दिया है और कुछ आप हज़रात माशाअल्लाह अक्लमंद है सभी, आजकल दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो इंसान अपने अच्छे और बुरे को न जानता हो, हलाल हराम की तमीज़ न रखता हो, सब जानते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो आजकल जो मुआशरे के अंदर गलतियाँ हो रही हैं, फसाद हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, सबको ये पता है कि लड़ाई और झगड़ा बुरी चीज़ है।
हर इंसान को ये मालूम है कि एक मुसलमान की गिबत करना बुरी चीज़ है। हर इंसान को ये मालूम है कि किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठा करके देखने नाजायज़ और हराम है। और हर इंसान को ये मालूम है कि किसी का माल हड़पना, छीनना, ज़मीन छीननी, ये नाजायज़ और हराम है। अच्छा लिबास पहनना, उलमा जैसा, बुजुर्गान दिन के जैसा लिबास पहनना, ये अच्छी चीज़ है। और दूसरे लिबास पहनना ये नाजायज़ है, इनके अंदर नमाज़ मकरूह होती है, सबको मालूम है। हज़रत फरमाते हैं कि अगर ये गलतियाँ फिर क्यों हो रही हैं, तो हज़रत ने फरमाया कि गलतियाँ ना जानने की वजह से नहीं हो रही, यानी ये नहीं है कि हमें ये नहीं मालूम कि एक चीज़ गलत है, बुरी है, अच्छी है, सब पता है। तवज्जो ना होने की वजह से हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं। तो जरा सी तवज्जो अगर हम शरीयत के अहकाम की तरफ को कर लें और अपने आलिमों से पूछ करके हर मसले के अंदर हम अमल कर लें, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा हो जाएगा। मैंने शायद पहले भी कहा हो, वक्त इतना नहीं मिलता। आज असल मकसद यहाँ खड़े होने का यह है कि देखो, इस बात के ऊपर सबको कंट्रोल करना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद के अंदर बैठ कर वादा कर रहे हैं, सबका ही फ़ायदा है इसमें। मैंने अभी ये बतलाया आपको कि हदीस में आया कि जो इंसान किसी को अच्छे रास्ते के ऊपर डालता है, समझियो, जो इंसान कोई अच्छाई का रास्ता निकालता है और उसके रास्ते निकालने की वजह से फिर रास्ता निकालने की वजह से उस सही रास्ते के ऊपर जो चलेगा, उस चलने वालों को सवाब मिलेगा ही, लेकिन जिसने वो सही रास्ता दिखलाया उसको भी क़यामत तक के सवाब मिलता रहेगा। अब ये जो आप अंदाज़ा लगाओ, जब कहीं मौत होती है गांव के अंदर, रिश्तेदारियों में जाना चाहिए, अच्छी बात है। सहाबा से साबित है कि जब मौत हो जाया करती थी, जनाजे हुआ करते थे, तो साहब भी जाते थे, साहबियात भी जाती, सब जाती थी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। असल जो बीमारी है हमारे घरों के अंदर, न मालूम हम लोग कैसे हो गए और शरीयत को हमने कितना पीछे छोड़ दिया। न हमारा मरना शरीयत के मुताबिक है और न दुनियावी काम शरीयत के मुताबिक है। अब चलते टाइप औरतों का सैलाब से हमारी माएँ, बहनें, जवान बगैर शादीशुदा और शादीशुदा सब जाती हैं और जा करके उस मुर्दे को देखती हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाओ, हदीस में आता है कि जो औरत या मर्द किसी गैर महरम की तरफ इरादतन निगाह उठा करके देखेगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी आँखों में शीशा पिघला करके डालेंगे। और यहाँ वो शीशा कैसा होगा, उसकी कैफियत तो अल्लाह ही को मालूम है, अल्लाह के नबी को मालूम है। बहरहाल लोगों को समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शीशा उसकी आँखों के अंदर डाला जाएगा। और हमारी औरतें आमतौर से उनका नज़रिया है, अगर उनको कहा जाता है जो बड़ी बूढ़ी हैं कि इस तरीके से किसी मुर्दे को देखना या किसी गैर महरम की तरफ को ताकना, झांकना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, तो उसका जवाब न मालूम कहाँ से उन्होंने इफ्ता किया, कहाँ से मौलवियत की, कौन से मदरसे से फारिग हैं। वो ये कहते हैं कि वाह, ये क्या बात कह रहे हैं आप, मुर्दे को देखना तो सवाब है, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। और जिस गुनाह को हम गुनाह समझ करके नहीं कर रहे, तो हदीस में आता है, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जिस गुनाह को गुनाह समझ कर हम कर रहे हैं, मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ, जो मेरे बड़े छोटे यहाँ बैठे हुए हैं, कि भाई मोबाइल तुम्हारी जेब के अंदर है, तुम गाने सुनते हो, फिल्में देखते हो, ये गलत है, ये बुरा है, अच्छा है, तो सब ये कहेंगे कि नहीं भाई बुरी बात है, वहाँ कहते हमें इस काम से रुकना चाहिए। तो फरमाते हैं कि जब बुराई दिल के अंदर है, उसका गुनाह होना दिल के अंदर है, तो हो सकता है कि अल्लाह उसको गुनाह समझने की वजह से, बुरा समझने की वजह से तौबा की तौफीक दे दे। और अगर किसी बुराई को इस तरीके से किया जाता है कि उस बुराई को हम अच्छा समझ के कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारी माँ बहन औरतें कहते हैं कि वह मुर्दे के देखने में सवाब है, तो उस ऐसे काम को जिसको हम बुरा समझ करके नहीं कर रहे, हालांकि वो बुरा नाजायज़ और हराम है, तो फरमाते हैं कि तौबा की तौफीक भी अल्लाह उससे सल्ब कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बगैर तौबा के मर जाता है। तो इस वास्ते इस बात के ऊपर सबको कंट्रोल करना है अपने अपने घरों के अंदर। हर इंसान अगर मुआशरे के अंदर सुधार की कोशिश कर ले, तो सारा मुआशरा बिल्कुल बहुत अच्छा और बेहतर बन जाएगा। तो इस बात के ऊपर कंट्रोल करो। पड़ोस में, मोहल्ले में मौत होगी, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है कि जा करके उसको देखें मत। यहाँ हम आम तौर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर यहाँ से इस बात का ख्याल रखा जाता है। और अंदाज़ा लगाओ, जब जनाजा रुकवाया जाता है और ये कहते हैं कि भाई वो आ रहे हैं इतनी दूर से, किराया खर्च का है, वक्त खर्च कर का है, वक्त खर्च कर का है, उन्हें देख लो, क्या हरज की बात है। और दिखाना, देखना गुनाह, तो इसका मतलब यह है कि हम गुनाह के अंदर मुलव्विस हो रहे हैं, एक गुनाह के काम की तरफ दावत दे रहे हैं। तो समझ लो कि अगर इस तरीके से किया जाएगा तो अल्लाह तौबा की तौफीक को भी सल्ब कर लेंगे। तो इस बात का अपने घरों के अंदर सबको कंट्रोल करना, जाने से कोई नहीं मना करता, जाओ। औरत है तो औरत को देख सकती है, मर्द को देख सकता है। हम अगर कहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारी के अंदर कोई मौत हो गई, हमारे साथ में ताए के लड़के, खानदानी, महल्ला वाले, पड़ोस वाले चल देते हैं, वो जा करके औरत को देखते हैं, उनके लिए भी जायज़ नहीं है। सिर्फ वो इंसान देख सकता है जिसका ज़िंदगी में उसके साथ निकाह हराम है, जैसे कि भतीजी है, सगी बुआ है, सगी बेटी है,
इस तरीके से जो महरम है वो सिर्फ देख सकता है, इसके अलावा जो इंसान देखेगा, चाहे मैं देखूं कोई भी देखे, वो गुनाह है। मर्द मर्द को देख सकता है, औरत औरत को देख सकती है। और हमारे घरों की औरतें जा करके दूर गांव में वहां मौत हो गई तो सारी बुर्का ओढ़ करके चल देंगी। ये देखने में आता है कि मर्द कम होते हैं, औरतें ज्यादा होती हैं, और उनके जहन के अंदर ये बात है कि देखना मुर्दे को सवाब है, तो तौबा की तौफीक भी नहीं होगी। तो इस वास्ते से वो कंट्रोल करना चाहिए। महल्ले में मौत हो रही, पड़ोस में मौत होगी, जाओ, जाने से कौन रोकता है, अच्छी बात है, हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन हमदर्दी करने के दूसरे तरीके बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें तो हम लोग भूल जा रहे हैं। और मौत के वक्त पर आकर बहुत सारी मोहब्बतें हमारे दिल से, हमारी आंखों से बक पड़े, तो इंशाअल्लाह कंट्रोल करेंगे इस पर।